Hello guys, I am Diksha Goyal. Today I am going to teach you the topic matter in our surrounding, which is the topic of class ninth. What is matter? Matter, anything that has space and occupies space, anything that has mass and occupies space is referred to as matter. कोई भी चीज़ जो जिसका मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको मैटर कहा जाता है. एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सैंड, वाटर, एयर, वाटर, शुगर एक्सेट्रा. स्मॉल मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स मेकअप मैटर. जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स होते हैं उनको मैटर कहते हैं क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज solid, liquid and gases on the basis of intermolecular forces and arrangement of particles. Third, the three forms of matter has interconvertible. जो तीनों फॉर्म्स होती हैं वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती हैं. कैसे? बाय अगर हम प्रेशर को बढ़ा या कम कर देते हैं या फिर हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं. जैसे आइस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो आइस लिक्विड में चेंज हो जाती है. नेक्स्ट इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है? मैटर कैन बी ए फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एस्पेक्ट ऑफ मैटर डैट कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड. फिजिकल प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये अमाउंट मैटर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेक्सचर, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, कलर, ऑर्डरनेस आते हैं. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. First property is the shape and volume. Solid has fixed shape and volume, but liquid has no fixed shape. Gas has no definite shape. Second one is the energy. And solid has lowest energy, liquid has medium energy, and gas has highest energy. Compressibility. Solid is difficult to compress. Liquid has nearly difficult, but gas has easy compressible. Fourth one is the arrangement of molecules. Regularly and closely arranged. This one is the regularly and closely arranged. Liquid has a randomly neatly arranged, but gas has random and more sparsely arranged. Fluidity. Solid cannot be fluid. Liquid can flow from highest to lower level, and gas flow in all the directions. Movement. Solid has negligible movement. Liquid has depend on the intermolecular force of attraction, and gas has negligible movement. Next is interparticle space. Solid has very less space, liquid has more space, and gas has large space. Interparticle attraction. Solid has maximum attraction, liquid has medium attraction, and gas has minimum attraction. Density. Solid has maximum density, liquid has minimum density, and gas has minimum density. Rate of diffusion. Solid has negligible rate of diffusion, liquid depends on the interparticle attraction, and gas has maximum rate of diffusion. Next has a characteristic of particles. First is particles of matter has space between them. जो particles होते हैं matter के उनके बीच का जो intermolecule space होता है वो बहुत ही रेयर होता है. एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो जो वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, बिकॉज जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के इंटरमॉलिक्यूल स्पेस में एडजस्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन. किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में ही रहते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा विग्रस मोशन में आ जाते हैं. थर्ड इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज़ एटॉमिक व्यू ऑफ solid, liquid and gas. Solid can be closely arranged, liquid is less arranged, but gas has in random motion. The particles are in random motion. Diffusion. What is diffusion? When the particles of matter intermix on their own with each other, the phenomena is called diffusion. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. एग्जाम्पल, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर. अगर हम इंक को वाटर के अंदर स्प्रेड करते हैं तो वो जो इंक है वो पूरे में फैल जाएगी. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. ड्यूरिंग डिफ्यूजन द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटरपार्टिकल स्पेस. डिफ्यूजन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं, वो जो बीच का जो स्पेस है उसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं. द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा बिकॉज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी. What is melting point? The melting point of a solid is defined as a temperature at which solid melt to become liquid. Melting point solid को हम solid के melting point हम कैसे define करेंगे?
वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। एट मेल्टिंग पॉइंट देयर आर टू फेज, सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। जो सॉलिड एंड लिक्विड होंगे वो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। एट दिस पॉइंट द सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एग्जिट साइमल्टेनियसली। इस स्टेट पर जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट होती है वो दोनों साइमल्टेनियसली होती है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी मैटर की स्टेट पे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर इंक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। दे बिगिन टू वाइब्रेट। जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाइयर एनर्जी पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। तो पार्टिकल्स आपस में गेट डिटैच फ्रॉम द, वो पार्टिकल्स आपस की जो अपनी जो पोजीशन है वहाँ से अलग हो जाएंगे और आप फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मैटर की स्टेट भी चेंज हो जाएगी। सॉलिड अंडरगोज फेज चेंज टू फॉर्म लिक्विड। जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जो लिक्विड है गैस फेज में चेंज हो जाएगा। फ्यूजन, नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्यूजन। व्हेन टू एटम्स कोलाइड टू क्रिएट अ हेवियर एटम। जब दो एटम्स आपस में कोलाइड करके बड़ा एटम बनाते हैं तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। एग्जाम्पल, जब टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करते हैं तो एक हीलियम एटम बनता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। द प्रोसेस जनरेट्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस के टाइम पे हमारी काफ़ी सारी अमाउंट एनर्जी की रिलीज़ होती है। एंड पावर्स द सन। इट डज़ नॉट जनरेट रेडियो एक्टिव फिजन प्रोडक्ट। इस टाइम पे कोई भी रेडियो एक्टिव फिजन प्रोडक्ट्स नहीं जनरेट होता। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो टेम्परेचर होता है जब पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट फॉर एनी मटेरियल इज द टेम्परेचर एट विच द मटेरियल ट्रांसफॉर्म इनटू गैस। कोई भी बॉइलिंग पॉइंट किसी भी मटेरियल का डिफाइन करते हैं कि जब कोई भी मटेरियल लिक्विड से गैस फेज में चेंज हो जाए उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। दिस हैपन्स एट ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर वाटर के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द सेल्सियस स्केल, जो सेल्सियस का जो स्केल होता है वो यूज़ करते हैं हम आइस वाटर के लिए एंड लिक्विड वाटर के लिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये वो हीट होती है जो रिक्वायर्ड होती है, जो हमें देनी होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये वो अमाउंट होती है एनर्जी की जो हम 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए देते हैं, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सब्लिमेशन, द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैसेस फेज। ये वो ट्रांजिशन होती है किसी भी सब्सटेंस की जब वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस फेज में जाता है विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड फेज। दिस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। फ्लो चार्ट फॉर द इंटरकन्वर्जन ऑफ द बोथ स्टेट्स। दिस इज सॉलिड, this is liquid, and this is in gas form. Solid to gas sublimation and gas to solid deposition. Liquid to gas is evaporation, but gas to liquid is condensation. Liquid to solid is freezing, but solid to liquid is melting. This is the changing states of matter. And next is the effect of change of pressure on the states of matter. Pressure का क्या effect पड़ता है किसी भी मैटर की स्टेट पे? बाय अप्लाइंग प्रेशर इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द मैटर डिक्रीजेज। अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उनके जो इंटर पार्टिकल जो स्पेस होगा वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। दस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस। अगर हम प्रेशर को कम कर देंगे, प्रेशर को अप्लाई कर देंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे तो हम सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन, द फिनोमेना बाय विच मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड अंडरगो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू ए गैसेस फेज। ये वो प्रोसेस होता है या वो फिनोमेना होता है जब मॉलिक्यूल किसी भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेट चेंज में आते हैं और गैसेस स्टेट में चले जाते हैं बिलो इस बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। जैसे गीले क्लोथ्स होते हैं, अगर उसको बाहर हम सुखा देते हैं तो उसकी इवेपोरेट होके वो सूख जाते हैं। Factors affecting evaporation. There are 4 factors that affect the evaporation. First is temperature.
द रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज विद अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ इवेपरेशन भी बढ़ जाता है. सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेज. अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ इवेपरेशन भी बढ़ जाएगा. ह्यूमिडिटी, द रेट ऑफ इवेपरेशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी. अगर हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपरेशन डिक्रीज हो जाता है. विंड स्पीड इज इंक्रीजेज. व्हेन द विंड स्पीड इज इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज. कूलिंग ड्यू टू इवेपरेशन, इवेपरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है. ड्यूरिंग इवेपरेशन द पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. जब हम इवेपरेशन होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए. एंड अंडर को तो उसका फेस चेंज हो जाता है. द एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम इट सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल. जो सराउंडिंग में से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसकी वजह से सराउंडिंग ठंडी हो जाती है. एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग. एप्लीकेशंस. टू कीप वाटर कूल इट कीप इन अर्थनवेयर. हम किसी पानी को ठंडा रखने के लिए उसको एक अर्थनवेयर मिट्टी के कंटेनर में रखते हैं. सिमिलरली पोर्स इन द कॉटन फैब्रिक. इसी सिमिलरली जो कॉटन फैब्रिक के जो पोर्स होते हैं उसमें से और अर्थन पॉट में से इवेपोरेशन होती है तो उसको वो ठंडा रखती है. टू कीप आवर बॉडी कूल. हम भी अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए वी स्वेट ए लॉट. हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है. इवेपोरेशन इज़ वॉट ट्रांसपिरेशन अल्टीमेटली इज़ आवर बॉडी वाटर इवेपोरेट्स. हमारी बॉडी का जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है यूजिंग एनर्जी इन द प्रोसेस. इस प्रोसेस में एनर्जी यूज़ होती है हमारी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है. इसी की वजह से हमें ठंडक महसूस होती है. वी ड्रेस इन कॉटन ड्यूरिंग द समर. हम गर्मियों में ज़्यादातर कॉटन के फैब्रिक्स पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं. कॉटन इज़ ए पावरफुल वाटर एब्जॉर्बेंट. जो कॉटन का फैब्रिक होता है वो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बेंट होता है. इट अलो मोर प्रेस्पिरेशन टू कम इन टू द टच विद द एयर. जब ये एयर की टच में आता है तो प्रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है. प्रोमोटिंग मोर इवेपोरेशन. प्रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी और हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा. क्वेश्चन. ऑस्मोसिस इज स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की ही. ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन बिकॉज इन बोथ केसेस पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. दोनों ही प्रोसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाते हैं. द ओनली डिफरेंस इज ऑस्मोसिस अप्लाइज टू द डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट. जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जो डायरेक्शन होती है वो सॉल्वेंट में होती है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है और जो सॉल्वेंट होता है वो उसका वाटर होता है. बट दिस इज़ द वन डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. थैंक यू.